Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we started about the second topic, that is the political system. In that we studied introduction. In political system क्या है? It is the social system which consists of many subsystems, right? Each subsystem has certain specified functions to perform. The political system is interwoven with other subsystem in society. सी अगर आपको अगर पूरा मॉडर्न मैन का पूरा इनकम्प्लीट स्टडी कब होगा, जब आपके पास इन सारे सवालों के जवाब नहीं होंगे. अगर आपका स्टडी कंप्लीट कब होगा, जब आपके पास जवाब होंगे. लाइक हाउ डज ही अर्न, हाउ डज ही स्पेंड हिज लेजर टाइम, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, राइट. अभी उसका सारे इन सवालों के जवाब मिलेंगे तब भी सब कुछ अच्छे से होगा. ऑल्दो फॉर पॉलिटिकल एनालिस्ट all the above mentioned factors are important, his basic concern would always remain with regularization and industrialization of power, making of autocratic decision, conflict resolution, to name a few aspects of human behavior with a clear political bias. See, now we'll move towards the concept of political system. In political system, a political system defines the process for making official government decision. It is usually compared to the legal system, economic system, culture and other social system. However, there is a very simplified view of much more complex system of category involving the questions of who should have authority and what the government influence on its people and economy should be. Then the meaning. Political system is the basic of all political activities in a state. It is immaterial whether the system is parliamentary democracy, absolute dictatorship, or an enlightened monarchy. But once the system has been introduced, whether with willing cooperation of the people or imposed from above, those in power and authority wish to maintain that all the cost. The political institution determines and enforces the law and punishes those who disobey them. Even in stateless society, which had no developed formal central institution, were seen having some kind of decision making and rule making process which were dominated by some members. As societies become wealthier, more complex political system develop and grow more powerful. Then we saw the definitions. सारे डेफिनेशन नहीं देखते, दो या तीन देखते. चल, robot, whether he likes it or not, virtually no one is completely beyond the reach of some kind of political system. Everyone is involved to some extent at some stage in some kind of political system, both willingly or unwillingly. David M. Wood. Political system thus becomes a set of interrelated variables convinced to be the political relevant and treat as if they would be separated from other variables consumed to be politically relevant, not immediately relevant to politics. Then David Easton, a political system can be designated as the interaction through which values and authoritatively allocated for a society. Then we were studying the characteristics of political system. We saw the first, use or threat of use of legal force. The first characteristic of political system is that it allows the legal authority to use the force. If David Easton speaks of authoritatively allocation of values, then of power, rules and authority, all this definition implies that legal authority can use force to compel anybody to obey its order. Then interaction, second point. Almond, in his book The Policy of Developing Area, writes political system is that system of interaction to be found in all independent societies which perform the function of the integration and adaptation by means of employment or threat of employment or more or less legitimate physical compulsion. The political system includes interaction between all the formal and informal institutions. The process of interaction is divided into three phases: input, conversion and output.
The Indian Constitution reflects the various interaction as many amendments were brought about to bring out zamindar abolition and socialization and remove poverty. Now moving towards the third point. See, interdependence of parts. Interdependence means that when the properties of one component in a system change, all the other components and the system as a whole are affected. इंटरडिपेंडेंस यानी क्या? जैसे एक चीज़ का प्रॉपर्टी, एक चीज़ का कुछ चेंज होता है तो तुरंत दूसरे पे भी असर होता है ना. बेस्ट एग्जांपल देखो, चाय पत्ती. हाँ, आप रोज़ एक ही चाय पत्ती पियो और आपको उसका टेस्ट बैठ गया है, राइट. एंड इफ़ आई चेंज द टी पाउडर, तो क्या है, टी पाउडर से क्या है, चाय का टेस्ट भी बदल जाएगा. हाँ, किसी किसी को दूध में भी बांस आ जाएगी उसमें ही. हाँ, तो क्या है, ये एक प्रॉपर्टी चेंज होते ही, एक कंपोनेंट चेंज होते ही दूसरे अदर कंपोनेंट भी चेंज हो गए. तो क्या है, यहाँ पे भी ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, यहाँ पे भी सब कुछ इंटरडिपेंडेंसी है. इवन हियर ऑल्सो वी कैन सी द इंटरडिपेंडेंसी. अगर प्राइम मिनिस्टर ने या कोई अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने एक गलत डिसीजन ले लिया तो क्या होगा, इसका असर किस पे होगा, इसका असर पूरे स्टेट पे होगा, अदर गवर्नमेंटल ऑफिसर्स में भी होगा. बराबर है ना, हर किसी को कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ेंगे. तो इसीलिए बोल रहे हैं कि एक कंपोनेंट इन अ सिस्टम एक चेंज हुआ तो क्या है, अदर कंपोनेंट एंड सिस्टम, इसको भी पूरी तरह, इसको भी डायरेक्टली इफेक्ट हो या इनडायरेक्टली इफेक्ट तो होना ही है, इफेक्ट तो बट ऑब्वियसली होगा. इन पॉलिटिकल सिस्टम द पॉलिटिकल पार्टीज हैविंग अ वाइड बेस and mass media change the performance of all other structure of the system and affect the general working of a system. अच्छा, अभी गवर्नमेंट में नई स्कीम आई, नई पॉलिसी आई, ये सब आपको कैसे पता चलता है? गवर्नमेंट नई पॉलिसी, नई स्कीम निकाल के गवर्नमेंट ऑफिस में ही रख लेती है क्या? नहीं, लोगों तक पहुंचाना गवर्नमेंट का काम है ना, और गवर्नमेंट वो लोगों तक पहुंचाती है. कैसे पहुंचाती है? विद द हेल्प ऑफ मास मीडिया. मास मीडिया यानी टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये सारे यूज़ करके क्या है, गवर्नमेंट का कुछ भी नया स्कीम, नया कुछ भी हो अपने तक पहुंचता है, अपने तक आता ही है. तो इस तरह से क्या है, गवर्नमेंट अपने को हेल्प कर रहा है इनफैक्ट. तो फिर क्या हो गया, अभी सारी खबर अपने तक आती है तो क्या है, ये अपना जनरल वर्किंग इसमें अफेक्ट होता है. अभी रिक्शा, इफ़ यू आर यूजिंग सम, आप ऑफिस जाने के लिए ट्रेन या कुछ यूज़ कर रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इफ़ यू आर यूजिंग, एंड इफ दिस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन गोज ऑन स्ट्राइक, व्हाट विल यू डू, हाउ विल यू गो टू ऑफिस? क्या आपका ऑफिस जाना आसानी से हो जाएगा क्या? ऑफिस आप आसानी से जा पाओगे? नहीं जा पाओगे आप ऑफिस आसानी से, क्योंकि आपको बहुत से प्रॉब्लम सामना करेगा. अगर बहुत दूर है, अभी मुंबई में वगैरह देखो, जिस दिन लोकल ट्रेन, बस, इन सबका स्ट्राइक रहता है तो उनको टैक्सी में ऑलमोस्ट दे आर सपोज टू स्पेंड 500 रुपीज़. वो बोलते हैं ट्रेन में जाते हैं तो हमारा 20-30 रुपये में काम होता है, टैक्सी से जाना मतलब कभी तो फिर टैक्सी से जाना पड़ा मतलब क्या है, बोलते 400-500 रुपये ऐसे ही जाता है. तो क्या है, अभी एक गवर्नमेंट का डिसीजन आपके लाइफ में असर करेगा, भले ही वो डायरेक्टली असर करो ना इनडायरेक्टली असर करो, एंड इट वुड अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द सिस्टम ऑल्सो. Moving towards the next paragraph. Not only that, but the emergence of trade union and pressure group affect the working of the political parties, the electoral process, the legislature, the bureaucracies and the judicial system. See, not only that, अब सिर्फ यही नहीं, ये जो ट्रेड यूनियन वगैरह रहते हैं, दूसरे जो ग्रुप रहते हैं, उनका भी कैसे असर होता है. हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ पे असर होता है, इलेक्ट्रल प्रोसेस पे, लेजिस्लेशन पे, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियल सिस्टम पे असर होता ही है. जैसे अभी देखो, वो पंजाब साइड में फार्मर्स का स्ट्राइक वगैरह चल रहा था ना, आपको क्या लगता है इसका गवर्नमेंट पे वगैरह कुछ असर नहीं हुआ था? अभी उन फार्मर्स लोगों ने, दे हैव ब्लॉक्ड द हाईवे. वो जो दिल्ली का हाईवे था ना, दिल्ली चंडीगढ़ कुछ हाईवे है, वो बड़ा मेन हाईवे है, वो हाईवे ही ब्लॉक कर दिया था उन्होंने. ऑलमोस्ट 7-8 घंटे के लिए हाईवे ब्लॉक कर दिया था. तो सोचो
कितना लोगों को उधर प्रॉब्लम हुई होगी। तो इसका असर गवर्नमेंट पे कुछ नहीं होता क्या? होता ही है गवर्नमेंट पे असर, पॉलिटिकल पार्टीज पे होगा, लेजिस्लेचर पे होगा, जुडिशियल सिस्टम पे, हर इस पे कुछ ना कुछ तो उसका असर होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द गवर्नमेंट इज अनेबल टू चेक द even rising price or inflation, then the labor are bound to demand more wages। से एग्जाम्पल पे दिया है, अगर गवर्नमेंट देख ही नहीं रहा है कि हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है बट लेबर को उतने का उतना ही पैसा मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए? लेबर ने स्ट्राइक पे जाना चाहिए। लेबर कैन डिमांड मोर ऑफ वेजेस, राइट। जैसे अभी देखो हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है, अभी दूध का ही देख लो। हाँ, दूध का दाम क्या है आज? 60 रुपीज़ लीटर है भैंस का दूध, और गाय का दूध क्या है? 50 रुपीज़ लीटर है। हाँ, पहले इतना था क्या दूध का रेट? नहीं था, इट वॉज 30-40 था, बट आज रेट क्या हो गया? 3 रुपया 2 रुपया बढ़ते 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 कितना है? 60 रुपीज़ लीटर है दूध। तो क्या है, अभी जो फैक्ट्री में वर्कर्स थे, आपको नहीं लगता उन्होंने ज़्यादा डिमांड किया होगा? अच्छा, जो दूध सप्लाई कर रहे हैं फैक्ट्रीज़ में, उन्होंने ज़्यादा डिमांड नहीं किया होगा, दूध का दाम बढ़ा लिया तो आपने, हर किसी ने दाम ज़्यादा ज़्यादा लगाया होगा, इसीलिए तो आज अपने तक आते आते दूध का रेट इतना हो गया है। उसी तरह से गवर्नमेंट ऑफिस में भी ऐसे ही सब चलता है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। इन केस द डिमांड is not met by the employer, then the laborers may resort to strike, which may become violent in the long run। See, in case अगर एम्प्लॉयर की डिमांड क्या है, पूरी नहीं होती होगी, हाँ, तो क्या है, what we can do, they can go on strike। और स्ट्राइक क्या है, स्ट्राइक अगर बहुत दिनों तक चलेगी तो वो वायलेंट भी हो जाती है। जैसे देखो मैंने अभी आपको फार्मर का बोला था, वो उन्होंने पहले फार्मर्स डिमांड वगैरह कर रहे थे कि उनको बढ़ा के चाहिए, इसका दाम चाहिए, वो चाहिए, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग चल रहा था फार्मर्स का। तो गवर्नमेंट ने सारी डिमांड मानी क्या? नहीं, गवर्नमेंट उनको बुलाता था नेगोशिएशन करने के लिए, आओ अपन बैठ के बात करते, विल सॉल्व योर इश्यूज एंड ऑल, बट फिर भी क्या थे, फार्मर अपनी जिद पे अड़े थे। गवर्नमेंट एक हाथ आगे बढ़ा रही है तो फार्मर ने भी एक हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए कोऑपरेट करने के लिए, बट दे वर नॉट रेडी टू एडजस्ट। तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फिर स्ट्राइक्स वगैरह होने लग गए। तो अभी उन्होंने लोगों को परेशान करने के लिए हाईवे ब्लॉक कर दिया, तो क्या है, दे वेंट ऑन स्ट्राइक्स, राइट। तो ये क्या हो गया, अब ज़्यादा वायलेंट होने लग गया था इन द लॉन्ग रन। आई डोंट नो, फिर बाद में धीरे धीरे सब कुछ सेटल हो गया था वहाँ पे। इन दैट केस द एम्प्लॉयर में कॉल द पुलिस एंड द पुलिस में स्टोर टू फायरिंग इन ऑर्डर टू क्विल द डिस्टर्बेंस। से अब उस केस में क्या है, यू कैन कॉल द पुलिस। एम्प्लॉयर ने क्या करना चाहिए, दे कैन कॉल द पुलिस, और पुलिस ने क्या करना है, आके सिचुएशन कंट्रोल में करनी है। अभी वो आपने नायक मूवी देखी क्या हुआ था नायक मूवी में, इसकी अनिल कपूर की नायक मूवी, अनिल कपूर रानी मुखर्जी की नायक मूवी आप लोगों ने देखी होगी। उसमें स्टार्टिंग में ही देखो कितने ऐसे दंगा फसाद करवा दिया। जो सीएम था, बस की स्ट्राइक हो गई थी, बस ने कुछ तो गाड़ी रोका नहीं या लेट आ गया, तो लोगों ने चिल्ला दिया, तो बस वाला स्ट्राइक पे चला गया। बस स्ट्राइक पे चली गई तो बाकी सब बस वालों ने भी बस का बीच में ही रोक दी एंड ऑल हुआ। फिर क्या है, सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही थी, तो वो सीएम ने क्या ऑर्डर दे दिया, दंगे फसाद करवा दो, गुंडों को भेज दो, दंगा करवा दो, लाठीचार्ज करवा दो। तो क्या है, उन्होंने क्या किया, आग वगैरह लगा दी बस को। तो क्या है, पब्लिक एग्रीवेट हो गई, पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर फायर ब्रिगेड वगैरह आके धीरे धीरे सब शांत हो गया, राइट। बट क्या हुआ, क्या है, बट सबका लाइफ डिस्टर्बेंस हो गया। हाँ, पुलिस तो आई चाहिए, पुलिस ने भी सब कुछ कंट्रोल करने का काम है पुलिस का, सिचुएशन उस वक्त का। इन सच केस द मिल ओनर विल क्लोज द मिल। अगर सिचुएशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल गई तो मिल ओनर क्या करेगा, ही विल क्लोज डाउन द मिल ऑब्वियसली। In order to solve this problem, the government will have to intervene by appointing a tribunal consist of the representative of the labor, the management and state। See, अब मिल बंद करने की बात आ रही है क्योंकि क्या है, प्रॉफिट ज़्यादा हो नहीं रहा है, तो अब मिल बंद करना है, तो अभी सारा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो एक कमेटी बिठाएगी जिसके अंदर क्या है, लेबर का, देयर वुड बी सम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लेबर, फिर मैनेजमेंट रहेगी और गवर्नमेंट का आदमी रहेगा। वो तीनों बैठेंगे,
प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, सारा देखेंगे एंड दे विल सॉल्व द मैटर इन अ प्रॉपर वे। गवर्नमेंट फिर उनके हिसाब से सब कुछ सॉल्व करेगी एंड वो सारा क्या है, और जो भी रहेगा हर किसी को मानना पड़ेगा। गवर्नमेंट का आदमी रहता है तो वो ऐसा है कि सिर्फ एक की बात सुनेगा, दूसरे की बात नहीं सुनेगा। लाइक वो ट्रेड यूनियन की या लेबर रिप्रेजेंटेटिव उनकी बात सुनेगा और मिल ओनर की बात नहीं सुनेगा, ऐसा नहीं है। वो सबकी बात सुनेगा, स्टेट का भी ध्यान रखेगा एंड देन ही विल कम टू सम डिसीजन। If the dispute is not solved by the tribunal, then the government will have to pass the legislature fixing the minimum wages and increasing the dear allowances according to the correspondence increase in the price index. See, अगर फिर भी डिस्प्यूट सॉल्व नहीं कर पा रहे, अभी कमेटी बिठाई है, कमेटी डिस्प्यूट सॉल्व नहीं कर पा रही है, तो क्या करना चाहिए? देन गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेचर पास करना चाहिए जहाँ पे क्या है, मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में बोल रहे हैं, राइट। मिनिमम वेजेस एक्ट देना चाहिए और डियर अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस उसमें क्या आता है, इंश्योरेंस आता है, मेंटेनेंस वगैरह आता है, डियर अलाउंस का रेट बढ़ाना चाहिए, तो क्या है, सबको फ़ायदा होगा इससे। द गवर्नमेंट विल फिक्स द बोनस, गवर्नमेंट फिर बोनस भी फिक्स कर देगी। ऑल दिस एम्पल डेमोन्स्ट्रेशन हाउ अ हैपनिंग ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड अफेक्ट्स द एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम। सी, अब ये सारा डेमोन्स्ट्रेशन जो अपन ने बोला देखा, इससे क्या है, अपना पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। इट इफ़ेक्ट्स द एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम ओवर हियर। देन comprehensiveness, political system is comprehensive because it includes all the interaction from the formal as well as informal institution in a society. See, political science क्या है, political science is comprehensive। क्यों? क्योंकि ये सारा इंटरेक्शन फ्रॉम अपने को, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसके अंदर अपने पास फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ग्रुप रहते हैं और दोनों ग्रुप को अपने को साथ में लेके ही काम करना है, राइट। क्योंकि फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप दोनों को इम्पोर्टेंस देंगे, दोनों का ध्यान रखेंगे, तब भी सब कुछ अच्छे से होगा, तब भी अपनी गवर्नमेंट अच्छे से काम कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इट इंक्लूड्स द interaction of religionism, regional unappealness, inflation, party politics, tactic of pressure groups, and social changes brought about by modernization. See, अभी फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों इंस्टीट्यूशन को देखना चाहिए, उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए। इट इंक्लूड्स इंटरैक्शन ऑफ रीजनलिज्म, देन रिलीजन को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, इन्फ्लेशन हो रहा है तो उस पर ध्यान दो। देन पार्टी पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स में क्या आएगा, अभी बहुत सी पार्टीज़ रहती है, अभी अपने महाराष्ट्र में एक ही पार्टी है क्या? नहीं, आई नो, जिससे मुझे पता है शिवसेना है, राष्ट्रवादी है, स्वाभिमानी है, ये तो मेन बड़े बड़े हैं। हाँ, मनसे और कितने छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ध्यान रखना है अपने को। Tactics of pressure groups and social changes brought about by modernization. See, tactic of pressure groups क्या रहते हैं, ये जो ट्रेड यूनियन वगैरह रहते हैं, they can be called as a pressure group, and social changes that brought about by modernization, से जो social changes आते हैं उसकी बात कर रहे हैं अपन। Then change of boundary, yet another aspect of the concept of system is the change of boundary. See, देखो एक और कंसेप्ट एस्पेक्ट क्या है इस कंसेप्ट का, एक तो है चेंज ऑफ बाउंड्री। अभी जो पॉलिटिकल सिस्टम अपने महाराष्ट्र में, डू यू थिंक वही गोवा में भी होगा, वही कर्नाटक में भी होगा? नहीं, थोड़ा बहुत अलग होगा ना, उधर उनके लोगों के हिसाब से उधर का कल्चर भी ध्यान में रखते हुए उनको काम करना पड़ता है। तो क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, दोनों जगह अलग अलग होगा। सो दे आर टॉकिंग ऑफ एन बाउंड्री ओवर हियर। येट अनदर एस्पेक्ट of the concept of the system is the change of boundary. The political system consists of interacting role of national subject voters, the legislator, bureaucrats and judges. See, अब ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ इंटरैक्टिंग रोल्स ऑफ, इसमें क्या रहता है, इट हैज़ अ इंटरैक्टिंग रोल्स ऑफ नेशनल्स, सब्जेक्ट्स, वोटर्स, द लेजिस्लेचर्स, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द judge. The same individual who perform role in social and economic system
also plays their notable role in political system. See, जो इंडिविजुअल हु परफॉर्म्स द रोल इन सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, जो इंडिविजुअल सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम में काम कर रहा है वो क्या है, इट कैन प्ले अ वेरी गुड रोल इन द पॉलिटिकल सिस्टम. When the individual form interest group, vote or pay tax, they changes their role from non-political to political ones. See, जब ये इंडिविजुअल क्या करता है, वो अपने सारे काम ईमानदारी से कर रहा है, लाइक ही इज पेइंग टैक्स, ही इज गिविंग वोट, और वो नॉन पॉलिटिकल है क्या? नहीं, वो धीरे धीरे पॉलिटिक्स में ऐसे पॉलिटिकली रोल प्ले कर रहा है अपना, भले डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बट वो प्ले कर रहे हैं. जैसे वोटिंग देना, बराबर टाइम पे वोट करना, ये इंडिविजुअल का राइट ऑफ द सिटीज़न है. गवर्नमेंट में दिया है तो आपको राइट दिया, तो आपका ड्यूटी है कि आप जाके वोट करो जहाँ पे भी आपका नंबर आया है. फॉर एग्जाम्पल, ऑन द इलेक्शन डे द सिटीजन लीव्स देयर फार्म्स, प्लांट्स एंड ऑफिस टू गो टू द पोलिंग स्टेशन. सी, एग्जाम्पल उन्होंने अच्छा दिया. देखो, इलेक्शन के दिन क्या करता है सिटीज़न, क्या है, अपना खेत में काम वगैरह नहीं करते ज़्यादा, ऑफिस वगैरह को छुट्टी देती है. क्यों देती है? सो दैट दे कैन गो एंड वोट. इन दिस वे दे आर क्रॉसिंग द बाउंड्री फ्रॉम इकोनॉमिक्स टू पॉलिटिक्स. से इसमें क्या है, वो अपनी बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं ना, वो इकोनॉमी टू पॉलिटिक्स जा रहे हैं. सिमिलरली, ड्यू टू वॉर टाइम द लार्ज इन्फ्लेक्शन इन द बाउंड्रीज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम टेक्स प्लेस. सी, उसी तरह क्या है, जब वॉर टाइम आता है तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेक्शन दिखता है बाउंड्रीज में ऑफ सोशल सिस्टम टेक्स प्लेस. देयरफॉर द बाउंड्रीज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम फ्रिक्वेंटली चेंज. इसलिए क्या है, ये जो बाउंड्रीज है ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, दे फ्रिक्वेंटली कीप्स ऑन चेंजिंग. देन नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. Nature of political system explained with following points. In our modern times, no political system can either be permanent or stable. बराबर है ना, पॉलिटिकल सिस्टम अपना परमानेंट स्टेबल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. अगर वैसा हो गया तो क्या है, दैट इज बाउंड टू डिजेनरेट इटसेल्फ एंड गेट कन्वीनियंटली बी प्लेस्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ अ स्टेट और डिजेनरेटेड सिस्टम. सी, अगर अपना पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, कभी स्टेबल नहीं और कभी परमानेंट भी नहीं रह सकता, राइट. अगर वैसा हो, इफ़ दैट बिकम्स, तो क्या है, इट डिजेनरेट इटसेल्फ, मतलब वो एक लिमिट में रह जाता है. और क्या है, अगर वो लिमिटेशन में ही काम करेगा तो क्या है, अपना सिस्टम सब कुछ क्या है, एक लिमिट तक ही चलेगा. Such a system is bound to create many lags in socio-economic system as well. See, ये जो system है, what will do? It is bound to create many lags in socio-economic system as well. In fact, with the coming of awakening in every section of society all over the world, the systems have rapidly started changing and new systems are quickly attracting the attention of the people. इनफैक्ट क्या है, अभी जैसे जैसे अपन लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जैसे जैसे वी आर मूविंग अक्रॉस द मॉडर्न वर्ल्ड एंड ऑल, क्या है, अपना सिस्टम भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. नए नए अपन भी सिस्टम में चेंज ला रहे हैं, और ये जो नया चेंज हो रहा है ना, इट इज़ अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ द पीपल. ये जो नया सिस्टम चेंज हो रहा है, इट इज़ ट्राइंग टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल. It was a time when federal system prevailed all over the world that was gradually accepted by the people. It then became a way of life. See, अब ये टाइम था जब अपन ने फेडरल सिस्टम अपनाया, ऑल ओवर द वर्ल्ड था, बट क्या है, धीरे धीरे लोगों ने वो एक्सेप्ट करना कम कर दिया और उसी तरह अपना वे ऑफ लाइफ भी चेंज कर लिया. देन थर्ड पॉइंट, but as the time passed, religion became very powerful and even federal laws accepted supremacy and authority of religious leader. See, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, हाँ, तो क्या है, जो पावरफुल लीडर्स थे, हाँ, और जो फ्यूरल लॉर्ड्स थे, उन्होंने भी सुप्रीमेसी एक्सेप्ट की और अथॉरिटी ऑफ द रिलीजियस लीडर, और अपने रिलीजियस में जो बड़ा है उसकी बात मानना, उसकी बात सुनना, उसको भी एक इम्पोर्टेंस दिया गया था. With the passing of time, people became more conscious and demanded their share in the running of administration of their own country.
से जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, पीपल जागरूक हो गए, पीपल दे बिकेम मोर कॉन्शियस, और उन्होंने अपना शेयर भी डिमांड चालू कर दिया कि बाबा हमारा भी हक है एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारे कंट्री के, तो हमको भी हमारे हक के हिसाब से सब चाहिए. सो व्हाट हैपेंड, पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग अबाउट द share in the administration of their own country. As is well known, the old system always tries to persist and resist every change. See, अभी जो पुराना सिस्टम है उसके अंदर क्या है, आप तुरंत नया सिस्टम डालोगे, नई नई बातें लाओगे तो हर कोई एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं करेगा. दे वुड फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दोज चेंजेस एंड ऑल. तो क्या है, इसलिए वो बोल रहे कि ओल्ड सिस्टम क्या है, इट ऑलवेज ट्राइज टू परसिस्ट एंड रेजिस्ट एवरी चेंज. हर बार वो चेंज नहीं एक्सेप्ट करते, दे ट्राई टू रेजिस्ट दोज चेंजेस एंड ऑल. We'll end up our lecture here. In next lecture, we'll study the fourth point. Meanwhile, read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.